welcome back to my channel. I'm Surbhi, and in today's video, as you already read by the title, we are going to do a Q&A related to my first ever tattoo. Yes, this is the tattoo that you guys are watching, and I put stories on like Instagram yesterday, and I was getting so many of questions and so many good comments and so much appreciation. I'm really glad and I'm really happy because this really turned out to be the best tattoo I have ever asked for. Because firstly ज़्यादा कुछ नहीं है, it's just a word and बहुत ज़्यादा meaningful है. It's very deep and it is something which I am motivated to and I do every day now, and it is self-reliance and the font is also really great, so I thought it would be a better place if I just do a tattoo on a collarbone. So this is, I was planning to have a tattoo firstly for a year now, but I was not able to decide what design should I go for. Like literally मैंने Pinterest पे अलग से एक बोर्ड बना के रखा था that I want to get tattoo, ये tattoo वो tattoo. खुद से भी मैंने बहुत सारे चीज़ें क्रिएट की थी, बट देन आई थॉट दैट आई वांट टू गो फॉर समथिंग जो, बिकॉज ये परमानेंट टैटू होगा एंड इट विल स्टे फॉर एवर विथ मी. सो आई वांटेड कि मुझे उसको फिक्स कराने की ज़रूरत ना पड़े कभी भी इन फ्यूचर. इट शुड बी समथिंग विच आई रिलेट टू, विच आई वाइब विथ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. So finally, after a lot of hustle and search and so much more things, I went for a tattoo. Now I have few bunch of questions right on my phone. Like I put the story on Instagram and I got so many of questions. So let's quickly begin. So first question is कि tattoo कहाँ से बनवाया है? Okay, so this tattoo I have made from Chandu Art Tattoo, CAT. This is in Goregaon East and the place is bomb. The hospitality is bomb. Like the way they treat you, and they knew that it is my first tattoo, so it was very chill. It was a really good place. If you want to check them out, then I have already tagged them on their Instagram page, and even I'll put a handle right here so you can go and contact them. The second question that we have is, what does your tattoo symbolize? Now, really very nice question. So, the tattoo is called self-reliance, and self-reliance is somebody who doesn't depend on anybody. Like फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, फ्रीडम हो, या फिर टू बी ऑन योर ओन टर्म्स, टू लिव योर लाइफ इन योर ओन टर्म्स. दिस इज़ वॉट इट मीन्स. एंड रिसेंटली, मैं बहुत पहले से वैसी थी, बट काफ़ी बार लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हो जाती है दैट यू गेट डिपेंडेंट ऑन समबडी एंड यू give somebody so much importance in your life, and they start ruling your life, be it your parents, your friends, your even in your relationship or anything, any kind of relationship, be it child or a parent or anything. You should always live your life on your own terms. This is something which I have learned in so many years and with experience. So I think this was the best thing that I could ever asked for. So yeah, this is what my tattoo symbolize. The next question is, okay, now I have very repetitive questions like meaning of tattoo and all, so I'll just pick few जो अलग होंगे, and I hope that answers your query. What is your height? Okay, well, this is related to tattoo only, but still, because somebody has asked, my height is only 5.1. I'm very short. I'm like not very short. I'm not very, I don't regret my height, but yeah, I'm short. I'm not very tall or, normal 5.3 above and all. Next question that we have is, did it hurt you? Like, it was painful or not? ये question मुझे इतने बार आया है. So, it was not painful. Now, honestly, let me tell you, पहले से इतना हाइप्ड था मेरे माइंड में, बिकॉज जितने लोगों से भी बात किया या अभी तक जितने लोगों का एक्सपीरियंस देखा है, इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर देम. सो आई थॉट इट इज़ रियली वेरी पेनफुल, बिकॉज या तो पेन होगा या तो जलेगा, इरिटेशन होगा, या फिर कंटिन्यूस वो पोक करता है. सो आई थॉट कि इट वुड बी समथिंग जो शायद मैं बेयर ना कर पाऊँ. सो इसीलिए मैं डबल माइंड थी, बट करवाना तो था ही. सो व्हेन आई went to this place and this guy asked me, rate yourself in terms of pain, like how much pain you can tolerate. सो आउट ऑफ 10 मैंने बोला 6 to 7 मैं कर सकती हूँ. आई होप कि वो इनफ हो फॉर दिस. ही इज़ लाइक ग्रेट, बिकॉज बाकी लोग मोस्टली 3-4 रेट करते हैं अपने आप को. सो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, मे बी हो जाएगा. एंड वंस ही स्टार्टेड, ट्रस्ट मी, I didn't even feel anything.
लाइक थोड़ा फील हो रहा था ऑफकोर्स, बट इट वॉज नॉट वेरी पोकिंग और इट वॉज नॉट वेरी पेनफुल, इट वॉज नॉट पेनफुल फॉर मी एटलीस्ट। एंड उन्होंने वो भी चीज़ बोली कि वो प्लेसमेंट पे भी मैटर करता है कि आप कहाँ पे टैटू करवाते हो, ऑल्सो आप क्या बनवा रहे हो। बिकॉज अभी मेरा बहुत छोटा सा था तो मुझे वैसे भी कुछ इतना फील नहीं हुआ, बट इफ़ यू हैव अ बिग डिज़ाइन बैक पे करा रहे हो, लोअर बैक पे करा रहे हो, तो रिब्स पे मे बी वहाँ पे थोड़ा पेन हो सकता है। बट ऑनेस्टली जिस लेवल पे मुझे था, मैं इतना बोल सकती हूँ कि जितना बोला जाता है उतना पेन बिल्कुल भी नहीं होता। पेन नहीं होता, कंटिन्यूस पोक होता है, बट कैन आई टेल यू, जो इंजेक्शन हमें लगता है ना उससे कम पेन होता है। दिस आई कैन टेल यू नाउ। इंजेक्शन जस्ट इमेजिन एक बार में लग के ख़त्म हो जाता है, उससे कम पेन होता है। लाइक यू विल जस्ट फील के कुछ हो रहा है बट कुछ पेन नहीं होगा। सो या, what are the precautions? Okay, so the next question we have is what are the precautions they asked you to take? Okay, so मैं इतना अवेयर नहीं थी, बट येस दे टोल्ड मी कि 10 to 15 days यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इनिशियली वो हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो लाइक आई थिंक मिनिमम वो 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स लगता है, शायद उससे ज़्यादा भी लगता होगा। तो 2 वीक्स लगता है कि आपका अपर स्किन लेयर जो है वो रिमूव होता है। सो यू डोंट हैव टू स्क्रैच इट और इन एनी वे, बिकॉज शायद थोड़ा इची होगा निकलते वक्त, तो उसको स्क्रैच मत करना। सेकेंडली यू हैव टू मॉइस्चराइज इट, बट विथ अ पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर और इवन अ वैसलीन और अ बेबी ऑयल। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सेंटेड तो कुछ भी नहीं लेना है, बिकॉज एक तरीके से वो वुंड होता है जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो एनीथिंग सेंटेड आई फील इट माइट इरिटेट योर स्किन और इवन कॉज एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन विच इज़ नॉट सेफ। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड बाकी पानी नहीं लगना चाहिए, लाइक मुझे नहाते वक्त आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एंड डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना है, लाइक ओनली फॉर 10-15 days यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उसको थोड़ा कवर रख रहे हो एंड बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहन रहे हो, या फिर उसके आसपास कुछ ऐसे परफ्यूम्स उसके ऊपर नहीं लगाना है। एंड वट एल्स, स्पाइसी फूड नहीं खाना है। सो गरम स्पाइसी जो भी होता है जिससे आपकी बॉडी से हीट निकल सकती है, वो टाइप का फूड थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है। ओनली जस्ट इट इज़ जस्ट फॉर अ वीक और 2। मेरे लिए इतना ज़्यादा टास्क नहीं था बड़ा, बिकॉज मैं इतना कुछ स्पाइसी वगैरह खाती नहीं हूँ आजकल, तो इट्स ओके, इट इज़ चिल। और लॉकडाउन ही है, ऑलमोस्ट घर पे ही है, वर्क फ्रॉम होम है, तो सनलाइट में बाहर निकलना या इतना कुछ व्हीकल ट्रैवलिंग इतना होगा नहीं। सो इट इज़ ऑल गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So yeah, next we have, is it a permanent tattoo? Yes, it is a permanent tattoo, guys. I'm not faking or pranking on anybody. It is a permanent tattoo. आधे से ज़्यादा लोगों को एक्चुअली ये चीज़ लग रहा है बिकॉज इट वॉज नॉट पेनफुल, या मैं ऐसे नहीं दिखा रही हूँ तो मे बी इट इज़ अ टेम्पररी ऐसा वो स्टिकर वाला। इट इज़ नॉट, इट इज़ अ रियल टैटू। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ हाउ मच इट कॉस्ट यू। सो यूजुअली प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फॉर टैटू ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत सारे एफर्ट्स जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। सो पर इंच के हिसाब से वो आपको चार्ज करते हैं। एंड आई डोंट नो, बट दिस वॉज रियली वेरी cheap. It was very sasta. It was like around 1500 for 3 inch. Like literally this tattoo is for 3 inches. So 3 inch के लिए मेरा almost 1500 में हो गया था। सो दैट्स अ रियली ग्रेट डील। और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था कि कुछ अलग क्वालिटी का इंक यूज़ हुआ है या क्या, जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वॉज वेरी 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 प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, आर यू प्लानिंग टू हैव अनदर टैटू आफ्टर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? डेफिनेटली, लाइक आई रियली वॉन्ट टू हैव 2 tattoos इन माई लाइफ, नॉट मोर देन दैट। मतलब मैक्स टू मैक्स 3, वो भी मैंने मैक्स बोला है, उससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं। बिकॉज आई एम नॉट समवन जिसको बहुत ज़्यादा टैटू ऐसे बड़े बड़े पसंद हो या फिर बहुत ज़्यादा टैटूज पसंद हो। आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे कुछ मीनिंगफुल बट थोड़ा मिनिमलिस्टिक पसंद है। सो डेफिनेटली ये तो मेरा फर्स्ट था जो बन गया है। आई एम रियली हैप्पी। नाउ सेकेंड, आई एम डेफिनेटली प्लानिंग फ्रॉम द सेम प्लेस आई वॉन्ट टू गेट अ टैटू, बट अभी नहीं। आफ्टर सम टाइम आई विल डू अगेन माई रिसर्च एंड एवरीथिंग एंड कुछ मीनिंगफुल करवाऊंगी। एंड दिस टाइम आई विल गो फॉर समथिंग डिज़ाइन वे में, लाइक ऐसे कुछ रिटर्न फॉर्मेट में नहीं। आई विल गो एंड डू समथिंग मिनिमलिस्टिक बट ऐसे कुछ डिज़ाइन वगैरह। सो आई विल क्रिएट बाय माई सेल्फ। मैं ऐसे थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। सो आई विल क्रिएट समथिंग जो मुझसे रिलेटेड हो, या तो मेरे काम से रिलेटेड हो, मेरी लाइफ रिलेटेड हो। मतलब टैटूज, आई फील कि एनी थिंग इन अ टैटू शुड बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू यू, बी इट योर पर्सनैलिटी, योर वर्क, or just how you vibe and what you like. It is all about you. The tattoo should be for you. That is it. I have one more question. How much would you rate your tattoo? I would rate it 10 on 10 definitely.
I really loved my tattoo and I'm just not faking it. Honestly, I'm so happy after my first tattoo. I can't tell you. Even yesterday, I was so happy, and it is really something which I can relate to, and this is something which I really wanted to have. So, of course, I am happy, and the design is also really perfect. The font is perfect, the placement is perfect. Everything is really great. I just need to take care of this thing and I'm really happy. So rating is 10 on 10. Next, and I think the last question is, do you like tattoo more in Indian attire or Western? Dude, this is what I was telling my best friend yesterday, that I am someone who doesn't like tattoo on Indian attire. Like in Indian attire, I don't know why it's a little weird. Everyone says because mostly girls go and even boys they like tattoo के साथ में जब हम Indian wear पहनते हैं. And this tattoo is something which will go on everything, and this is the best thing because Western or Indian दोनों पे जाएगा. But I am someone who doesn't prefer, so I might conceal if I don't like it in Indian attire. But for Western, yes, definitely I love कि मैं ऐसा कुछ पहनूँ और तभी वो show हो रहा है, then it works best for me. But for Indian, I have not yet given any thoughts, but maybe in future I would like. So that's it for today's video. It was quite short video, only few bunch of questions, but I really enjoyed answering all of your questions. And if still you have any questions, you can comment down below and I will definitely come back to you. And that's it for today's video, and we'll meet really soon. Till then, bye bye, take care.